Hello, good evening, guys. This is Kinika Rathod from Mumbai, and I'm co-founder of Escape Bridal. And this is Shraddha Shah from Mumbai, even I'm co-founder of Escape Bridal. Today, we are going to show you a new makeup look on our beautiful model, Tanvi. She is here. Yeah, she's a model for the evening, and we'll be doing makeup on her, and we'll be showing a nude makeup on her. Yeah, so nude makeup is all about natural look, which we can natural and we can say a subtle look, which we can carry everywhere in our daily life, like going to any functions or going to the offices, anywhere. So by the time we are short of time, so we have prepped the skin already. We have cleaned her skin, and we have made the skin ready for it. So we will be starting with the makeup now. प्रेपिंग में हम लोगों ने स्किन को क्लेंस किया है क्लेंजिंग से लॉरियल का क्लेंजिंग लोशन है you have to cleanse the skin with this lotion and after cleaning the skin you have to apply a moisturizer we have used a Biotic. This is for all skin types and moisturizer करने के बाद you have to wait for 2 or 3 minutes to just check the moisturizer has penetrated inside the skin of the inside your skin or a model's skin, whatever you are doing on whomever. So we have just done the prepping of the skin and we will be starting with the makeup. So for the makeup, first I will start with the eyes. As we always start with the eyes first because in case we want to do some sometimes smoky makeup or sometimes glitter makeup in the eyes, all the fallout should not be there under the eyes. So we can always remove the fallouts. So अगर हम लोगों ने बेस पहले कर लिया है और कुछ फॉलोआउट हुआ तो पूरा कंप्लीट बेस निकालना पड़ता है. वो बेस निकालने का अवॉइड करने के लिए ऑलवेज स्टार्ट योर मेकअप विद द आई मेकअप फर्स्ट एंड देन गो टू बेस. Okay, so I'm starting with the eye makeup by using this concealer. This is concealer from Ferrari. You can see the concealer palette over here. And eyelids पे concealer करने का reason वो है कि हमारी स्किन में discoloration होता है. You always have a discoloration on your. I'm so sorry to interrupt. Can you move the device a little closer? Come a little. आपका voice थोड़ा break और rough आ रहा है, so it's getting a little difficult to Sure. बेटा नीचे दबा देना. How is it audible? I think this is better. Yeah. So we are starting with the eye makeup right now. And I'm concealing it with this. This is a concealer palette from Ferrari, and I'm concealing her eyes. And after that, we'll start with the procedure. Eyes concealer करने के लिए step हम लोग conceal इसलिए कर रहे हैं क्योंकि discoloration होता है हमारी skin में always. तो वो discoloration avoid करने के लिए हमको eyes के lid पे concealer लगाना पड़ता है. और वो कंसीलर लगाने से हम लोग जो जब भी ब्राइट कलर्स यूज करने वाले हैं तो वो ब्राइट कलर्स भी पॉप आउट होके दिखते हैं. आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर हम लोग उस कंसीलर को सेट करने के लिए उसमें पाउडर डैप करते हैं. थोड़ा पाउडर करने से क्या होता है ना कंसीलर थोड़ा ऑयली बेस रहता है. ऑयली बेस होता है तो हम लोग प्रोडक्ट जब मर्ज करते हैं आई शेडो जब मर्ज करते हैं तो वो आई शेडो एकदम एक दूसरे में ना मिक्स हो जाए उसके लिए हमको थोड़ा पाउडर डस्टिंग कंसीलर पे करना पड़ता है. व्हाट शी इज डूइंग राइट. पाउडर डस्टिंग हो चुका है. अभी मैं आई स्टार्ट करने वाली हूँ जो न्यूड मेकअप में रहेगी. और आई मेकअप के लिए मैं ये वाली पैलेट यूज कर रही हूँ जो मिशेली पाल्मा की पैलेट है, न्यूड पैलेट जिसे बोलते हैं. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस two colors. One is mocha and other one is caramel. I'll be merging both the colors and start applying on her eyelids. न्यूड मेकअप एज इट ऑलरेडी सेज कि न्यूड मतलब एकदम लाइट और एकदम सटल होता है. तो हम लोग अभी लाउड आईज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम सटल आईज कर रहे हैं, एकदम न्यूड.
kindly check the direction of what I am doing. You can always do it on your own face in the same way, same procedure. ब्लेंडिंग बहुत नेसेसरी है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होएगा तो ही आई शेडो का लुक आएगा। ऑलवेज ब्लेंड योर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली, उसको सिर्फ पैच मतलब उसको रख के छोड़ नहीं देना है, यू हैव टू ब्लेंड इट प्रॉपर्ली जैसे ये कर रही है अभी। ये जो ब्लेंडिंग है वो फ्रीज लाइन से ली गई है, इसे फ्रीज लाइन कहते हैं। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा लिया है ताकि वो जो भी ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो भी आईज अच्छी नहीं दिखेगी, ज्यादा नीचे रहेंगे तो भी वो प्रॉपर लुक नहीं देगा। यू हैव टू बी परफेक्ट ऑन योर फ्रीज लाइन। फ्रीज लाइन एग्जैक्ट होना चाहिए आपका, तो भी अगर आईज ओपन है तो भी वो मेकअप दिखेगा, अदरवाइज वो मेकअप नहीं दिखेगा। Now this is a perfect nude color. In this color, we can add more for doing some kind of smoky eyes. Or if you want to do more nude eyes, which you don't want a little bit of makeup also, then we have to just lighten this part again. तो वो स्किन टोन का कलर लेके उसको लाइट करना पड़ता है। अगर इतना कलर भी आपको नहीं चाहिए तो It is always up to the client's choice or your personal choice कि आपको कैसा लुक करना है, आप कौन सी ओकेजन पे जा रहे हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप मैट लुक पे जा सकते हो कि जस्ट इतना किया है, स्पाइलाइनर किया, यहाँ पे हाइलाइटिंग किया और आप ऑफिस लुक के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कहाँ पे भी फंक्शंस में जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा शिमर दे सकते हो, जो मैं अभी शिमर दे रही हूँ। एक वन आइज में मैं शिमर करके बता रही हूँ, और सेकेंड आइज का मैट लुक देख सकते हो, तो दोनों आपको आइडिया हो जाएगी कि कैसे दिख रहा है। आप कितना भी करके जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको शिमर करना है या लाइट कलर करना है, नहीं। यू कैन जस्ट डू दिस आल्सो एंड यू कैन मूव। न्यूड मेकअप इज बेसिकली अ स्किन टोन जो हम कैरी कर सकते हैं, हमारे स्किन पे अच्छा लग सकता है, और न्यूड ऑलवेज लाइट कलर्स में ही होता है। Now I'm applying a little bit of shimmer on her eyeball area. सिर्फ मैं eyeball area पे थोड़ा shimmer दे रही हूँ, ताकि जो भी आप कोई स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हो और आपको ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए कि चलो मॉर्निंग फंक्शन है, हमको सिर्फ थोड़ा शिमर करके जाना है, थोड़ा न्यूड लुक है, तो आप ऑलवेज इतना करके जा सकते हो। देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस कि नहीं मुझे थोड़ा ज्यादा करना है, तो आप ज्यादा भी इस पे कलर शेड दे सकते हो। जैसे क्रीज लाइन एरिया है, इसमें मैंने ज्यादा कलर की आप डाल सकते हो, ब्राउन में, और ये जो है वो कंप्लीट मैट लुक हो जाएगा। इस पे भी अगर आपको ज्यादा करना है, मतलब स्मोकी लुक मैट में चाहिए, आप ब्लैक भी ऐड कर सकते हो, डार्क ब्राउन भी ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी सेकेंड आईज में भी शिमर लुक दे रही हूँ आज, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये हमने टू आईज का आपको बताया है कि आइडिया दिया है कि कौन से टाइप की आईज आएगी न्यूड लुक की। मैंने आईबॉल एरिया पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपको करके दिखाया है, तो आपको इसमें समझ आएगा कि शिमर आईज कैसी लगती है। Now we are doing liner. लाइनर भी ऑप्शनल है न्यूड मेकअप में। अगर आपको लाइनर करना है तो करो, नहीं करना है तो यू कैन जस्ट पुट एन आई शेडो एंड मूव। लाइनर का कंपल्शन नहीं होता है न्यूड मेकअप में। और आई शेडो नहीं, मतलब लाइनर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मस्कारा कर सकते हो। आप मस्कारा करके अगर आप
अपनी आईब्रोज से ज्यादा रिफाइन कर लेती हो तो वो भी एक न्यूड मेकअप ही हो जाता है। लेकिन अभी ये मेकअप को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये मैंने शाइनी आईज की है, मैं इसको लाइनर से कंप्लीट करूंगी। ये इंग्लॉट की लाइनर है जो जेल बेस्ड लाइनर। लाइनर की भी अपनी चॉइस है, किसी को थिन लाइनर्स पसंद है, किसी को थिक लाइनर्स पसंद है, किसी को विंग लाइनर्स पसंद है। लेकिन जनरली जो न्यूड मेकअप रहता है, जो सिंपल नॉर्मल मेकअप होता है, उसमें थिन लाइनर भी प्रेफर किया जाता है, या फिर मर्ज लाइनर भी कर सकते हैं, जो कि वो भी बहुत ही थिन होता है। तो मैं यहाँ पे आपको करके जब भी लाइनर कर रहे हो, अपना एज ऑफ द आईब्रो जो होता है यहाँ पे, इससे उठाओ और फिर लाइनर करो, तो आपका जो इनर कॉर्नर्स कभी कभी किसी का खाली रह जाता है आईलाइनर का, तो वो भी एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। मैंने हल्का सा बाहर थोड़ा ही दिया है, क्योंकि वो ज्यादा विंग लाइनर से अभी फिलहाल शूट होगा, क्योंकि हम नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, जो नेचुरल लुक होता है। अगर इसमें अगर आपको विंग देना है तो आप फर्स्ट विंग लाइनर दे सकते हैं। अगर आप ग्लैम लुक कर रहे हैं तो उसमें भी विंग लाइनर बहुत अच्छा दिखता है। नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो डिफाइनिंग। आईब्रो डिफाइनिंग एक बहुत ही मतलब एकदम ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये मेकअप का। अगर आईब्रो डिफाइनिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो पूरा फेस का शेप अलग हो जाता है, हमारा पूरा फेस अलग दिखने लगता है अगर आईब्रो डिफाइनिंग प्रॉपर नहीं हुआ है। आईब्रो डिफाइनिंग मैं इस प्रोडक्ट से कर रही हूँ, जो माई ग्लैम का आईब्रो पाउडर है। इट इज नॉट अ कलर। अगर आप कलर से आईब्रो डिफाइनिंग करते हैं वो एकदम प्रोमिनेंट लुक हो जाता है, कि बहुत ही आर्टिफिशियल लुक क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप कलर, इसका जो पाउडर है उसमें अगर आप आईब्रो डिफाइनिंग करेंगे तो आपको ये एकदम नेचुरल लुक दिखेगा, जो मैं अभी आपको करके बता रही हूँ। तो आपको वो समझ आएगा कि पाउडर से क्या इफेक्ट होता है। आईब्रो डिफाइनिंग के टाइम हम ऑलवेज पाउडर यहाँ से डिपॉजिट करके स्टार्ट करेंगे। अगर स्टार्टिंग में डिपॉजिट नहीं करना है पाउडर, और 3/4 आईब्रो से डिपॉजिट करना स्टार्ट करना है, एंड तक लेके जाना है, और फिर जो प्रोडक्ट बचता है आपके ब्रश में या आपके जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें, फिर वो आगे के एजेस पे अपवर्ड्स मूव करना है, जैसे वो कर रही है। अगर सीधा आप स्टार्टिंग से करते हो स्टार्ट, तो पूरा डिपॉजिट आगे हो जाएगा कलर, और वो बहुत ही गंदा दिखेगा। ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम 3/4 और हाफ ऑफ योर आईब्रोज, जहाँ पे डेप्थ, जहाँ पे ज्यादा बाल, तो वहां पे ज्यादा पाउडर रहेगा तो वो दिखता नहीं है इतना, और जहाँ पे कम है और वहां पे आप एकदम ही डाल दोगे तो बहुत ही दिखता है और बहुत गंदा दिखता है। This is a powder. Basically, it is not a eyeshadow or any kind of paint. You get even eyebrow defining paints. वो बहुत ही गंदा और artificial दिखता है। Now we'll start with the skin. Skin जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी इनकी मैंने प्रेप कर चुकी हूँ इनकी स्किन। तो अभी मैं कंसीलिंग, करेक्टिंग और फाउंडेशन यूज करूंगी और
बताऊंगी कि क्या होता है एग्जैक्टली। पहले हम लोग करेक्टिंग करेंगे स्किन पे। हम लोगों ने उसका स्किन मॉइस्चराइजर कर दिया है, क्लीनिंग कर दिया है, सब कर दिया है। अभी हम लोग उसकी स्किन को करेक्ट करेंगे। करेक्टिंग इज ऑलवेज जहाँ पे हमारा डार्क सर्कल्स होता है, पिगमेंटेड स्किन होता है, कभी कभी किसी को डार्क स्पॉट्स होते हैं स्किन पे, वो हाइड करने के लिए हमको करेक्टर यूज करना पड़ता है। फॉर फेयर टोन हम लोग येलो करेक्टर यूज करते हैं और फॉर ब्रिटिश टोन हम लोग रेड करेक्टर यूज करते हैं। So this is the correcting palette from MAC और इसका मैं अभी ऑरेंज शेड ले रही हूँ because you can see that she's having some pimples and pigmented skin also below her eyes. So I'll be just merging 2-3 colors of for her skin and show you how to correct it. Correct कैसे करना है? ज्यादा कर लोगे तो वो फेयर है तो बहुत ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगेगा। प्रमोशन में लेना है आपको हर चीज को। ऐसा नहीं कि व्हाइट के लिए ऑरेंज बोला तो ऑरेंज ही सीधा लगा देंगे। ऑरेंज जितना लगाओगे उतना स्किन उसकी कंसीलिंग करने के बाद टर्न ऑरेंज टर्न होती जाएगी, बट व्हाइट नहीं दिखेगी, वो ऑरेंज साइड दिखने लगेगी। तो वो प्रपोर्शन भी आपको ध्यान में रखना है कि आप किस प्रपोर्शन में प्रोडक्ट ले रहे हैं। ऑलवेज ध्यान में रखना है, पिंपल जो वॉल्यूम होता है ना वो कभी हाइड नहीं होता है। जो दाग होता है वो हाइड होता है। अभी सपोज वॉल्यूम है, जहाँ वैसे सा हुआ वॉल्यूम है अपना, तो वो वॉल्यूम होता है, उसका पिंपल का वॉल्यूम हो जाता है, तो वो वॉल्यूम कभी हाइड नहीं होता है। ऑलवेज कलर उसका जो मार्क है वो हाइड रहेगा, उसका वॉल्यूम हाइड कभी नहीं। मैंने ऑरेंज करेक्टर किया है इसके ऊपर और एक उनकी जो स्किन फेयर टोन पे है, तो ये जो फेयर टोन की स्किन है उससे एक शेड डार्क कर लेना है, मतलब मीडियम टोन पे इसके ऊपर हम काम करेक्टर करेंगे। के ऊपर ही आपको इसके टोन का एक टोन डार्कर लेके लगाना है। करेक्टिंग हम लोगों ने जहाँ पे पिगमेंट था, जहाँ पे डार्क स्पॉट्स थे, अंडर आई था, वहां पे हम लोगों ने पहले ऑरेंज करेक्टर से करेक्टिंग किया। अभी उस पे हम लोग उसके ही स्किन टोन का एक टोन डार्कर लगा रहे हैं, जो उसके ऑरेंज टोन को बिठा देगा, ऑरेंज टोन को लाउड नहीं होने देगा उसको। Please see the hand movements also. I am not dragging it. I am depositing the color. मतलब मैं उसको deposit उसको seal कर रही हूँ। ये color को मैं उसके अंदर seal, अगर मैं उसको निकाल देती तो उसका मतलब ही नहीं है correct करने का। तो उसको ऐसे deposit कर दूँ तो वो वहाँ से हिलेगी। इसके बाद जो concealing होगा वो दोनों चीज उसको lock कर देगी, concealing और correcting। ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा गीला करना है, डैम्प करना है हमको। This is already a damp. दिस इज ऑलरेडी अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, और उसको उससे वो उसको उससे लॉक कर रही है, वो उसको उठा नहीं रही है, वो उसको बिठा रही है स्किन। I'm just locking this color in her skin. तो वो फिर उसकी जो पिंपल्स है वो ज्यादा नहीं दिखेगी, और ज्यादा पिंपल ना दिखे उसकी हम इसमें ट्राई कर सकते हैं न्यूड मेकअप में, लेकिन बहुत ज्यादा मेकअप नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ नेचुरल लुक। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पिंपल है, बहुत पिगमेंटेड स्किन है, तो उसके लिए आपको 3-4 लेयर के मेकअप करने पड़ेंगे जो न्यूड मेकअप में बेसिकली नहीं होते। हम लोग इसमें सिर्फ करेक्टिंग और कंसीलिंग करके फाउंडेशन दे देंगे, तो दैट विल बी the completion of that new makeup. आप देख सकते हो कि जो बहुत ज्यादा ऑरेंज 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 दिख रहा था वो अभी अंदर बैठ गया और थोड़ा कम लगने लगा। जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स थे, जहाँ पे भी पिगमेंट थे, जहाँ पे भी डार्क सर्कल्स थे, हम लोगों ने वहां पे प्रोडक्ट को लॉक कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर।
अभी आप देख सकते हो उसकी स्किन में फर्क कितना दिखता है करेक्टिंग करने के बाद। पहले उसकी स्किन में इतने पिगमेंट्स दिख रहे थे, डार्क सर्कल्स दिख रहा था, अभी उसकी स्किन देखो, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है बिफोर और आफ्टर। कंसीलिंग की मेरे पास ये सुप्रा कलर की पैलेट है, क्रायलन की सुप्रा कलर की पैलेट है जो आप देख सकते हो। These are the colors which I use generally for the makeups. उसका अप्लाइंग का स्टाइल भी देखिए आप लोग, वो कैसे अप्लाई कर रही है। ये हम लोगों को डेली मेकअप के लिए बहुत काम में आता है और ये सुपर फास्ट स्टाइल है। इससे ही आप लोग यही स्टाइल से करोगे तो आपका बेस क्विकली हो जाएगा। जहाँ पे हाइलाइटर की जरूरत है वहां पे उसने फेयर टोन लगाया है। आप देख सकते हो टी जोन एरिया, अपना चिकबोन एरिया, वो सब उसने हाईलाइट करने के लिए वहां पे ये व्हाइट कलर लगाया है। उसके स्किन टोन से एक टोन फेयर है, क्योंकि हम लोग को वो एरिया हाईलाइट करना है। और ये ब्लेंडिंग में भी आपको प्रोडक्ट खाना नहीं है, ये ब्लेंडिंग में भी आपको प्रोडक्ट डिपॉजिट भी करना है, टैब भी करना है। जब भी आप कंसीलिंग कर रहे हो तभी साथ में, जब इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो साथ में अपना नेकलाइन एरिया आप तभी कवर कर सकते हैं। ऑलवेज ना हमारा ये और ये अलग रहता है। तो अभी भी आप देखोगे अगर आपने ज्यादा मेकअप यहाँ पे किया है और यहाँ पे कुछ नहीं किया है, वो पूरा डिफरेंट दिखता है और वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो ऑलवेज जब भी आप कर रहे हो तो अपने ब्रश में जो बचा हुआ प्रोडक्ट है या ब्यूटी ब्लेंडर में जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे ड्रैग कर। ड्रैग करने से उसको एक लेवल मिल जाएगा, एक शील्ड मिल जाएगा ऊपर। इनका जो हम लोग जनरली कैसे चेक करते हैं कि इनका टोन कैसे, जो अपनी अपर चेस्ट पोर्शन होता है ये अपना राइट स्किन टोन होता है। दिस इज द राइट वे टू जज व्हिच इज आवर स्किन टोन। आप कभी भी कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी लेने जाते हो तो आपको हाथ में ऐसे करके बताते देख लो आप, नो, सो दिस इज वी हैव टू सी चेक इट ओवर हियर, और इसको मैच करो। किसी किसी का ऐसे होता है कि गला टेन है, मतलब नेक टेन है, फेस थोड़ा फेयर है और ये पार्ट फेयर, तो फिर आप कैसे करोगे? तो आपको यही पार्ट से चेक करना है, यही पार्ट का आपको लेना है तो वो इक्वल लगेगा, फिर ये सब आप एक जैसा दिखा सकते हो। और न्यूड मेकअप में बहुत सारे जन जो है कंसीलिंग मेकअप करके ही जा सकते हैं, मतलब सिर्फ कंसीलिंग करके निकल जाते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हो, बट अगर फाउंडेशन किया तो वो एक फिनिश्ड लुक देता है। फाउंडेशन में जैसे खुद का अपना शाइन होता है, फाउंडेशन वो ऑयली बेस रहता है, उसमें खुद का शाइन रहता है और खुद का शिवर ग्लो रहता है। फाउंडेशन लगाओगे तो आपका स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगा। कंसीलिंग कैसा है, वो आपकी स्किन में बैठ जाता है तो वो इतना ग्लो नहीं देता। लेकिन कभी आपके पास टाइम नहीं रहता है, आपको ऑफिस रश करना है या किसी पार्टी में रश करना है, तो आप कलर करेक्टिंग करके आप सिर्फ कंसीलिंग करके पाउडर डस्टिंग करके आप निकल सकते हो, बट दैट वुड नॉट स्टे, इतना स्टे नहीं करता है जितना फाउंडेशन उसको ज्यादा स्टे कराता है मेकअप। फाउंडेशन से एक फिनिश्ड लुक आ जाता है फेस पे पूरा। आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं हाइलाइटर करने की जरूरत पड़ती है, नहीं ग्लो देने की जरूरत पड़ती है, कुछ एक बार फाउंडेशन लगा दिया वो ऑटोमेटिक ग्लो करने लगता है।
मैंने कंसीलिंग कर दिया है, अभी मैं फाउंडेशन कर रही हूँ जो इनके शेड का है। वो जो फाउंडेशन है वो एग्जैक्ट उनकी स्किन टोन का मैचिंग रहेगा। जनरली हमारी इंडियन स्किन टोन ऐसी है ना कि हमको डायरेक्ट फाउंडेशन कभी मैच स्किन टोन का नहीं मिलता। यू ऑलवेज हैव टू मैच टू प्रोडक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म योर स्किन टोन करेक्शन फाउंडेशन। सॉरी, आपको अपने स्किन टोन का फाउंडेशन देने के लिए 2 फाउंडेशन मर्ज करना ही पड़ता है। हमारे इंडियन स्किन टोन्स के लिए वो डायरेक्ट फाउंडेशन मिले ऐसा कुछ है ही नहीं। आप कहीं पे भी चाहोगे वो लोग बोलेंगे मैं आपकी स्किन टोन का फाउंडेशन बना के दूंगी, या फिर हमारी कंपनी में आपको बना के देंगे ये फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आपका करेक्ट स्किन टोन हमारे यहाँ पे स्किन टोन्स के एक भी करेक्ट फाउंडेशन नहीं मिलता। जब भी आपको स्किन टोन का चेक करना है, जैसे इसने बताया, आपका चेस्ट पे या फिर आपके यहाँ पे स्वैप करके देख सकते हो, जो कलर आपकी स्किन पे पेनिट्रेट होता है, जो आपकी स्किन के साथ मैच हो जाता है, वही आपका राइट फाउंडेशन होता है। मैंने हुडा का हमारे फाउंडेशन जो है वो लिया है इनकी स्किन टोन के लिए, जो इनकी वो भी मैंने मिक्स किया है 2 हुडा के फाउंडेशन, तो उनका स्किन टोन मुझे मिला है। 2 फाउंडेशन मिक्स करने के बाद उसको मिला है, एक उसने हुडा का मिक्स किया है और दूसरा फॉरएवर 52 का, और दूसरा फॉरएवर 52 का उसने मिक्स किया 011। फाउंडेशन की क्वांटिटी दोनों मैंने मिक्स कर दी क्योंकि इसकी जो स्किन है वो थोड़ी न्यूट्रल पे भी जा रही है, तो थोड़ा पिंक टोन और येलो टोन दोनों मिक्स हो रहा है। आपको स्किन तो फाउंडेशन लेने के लिए आपको आपका अंडरटोन जानना बहुत नेसेसरी है। आपका अंडरटोन कौन सा है? ऑलवेज हमारे स्किन में अंडरटोन्स होते हैं, जैसे वार्म अंडरटोन होता है, कूल होता है और न्यूट्रल होता है। 3 अंडरटोन्स होते हैं, तो वो अंडरटोन जानना बहुत नेसेसरी है। अगर आप कूल अंडरटोन ले रहे हो, अगर आपकी स्किन वार्म है और आप कूल अंडरटोन ले रहे हो, वो डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। अगर आपकी स्किन ही पिंक कलर की है जो मतलब, और उसके बाद अगर आप येलो अंडरटोन का कोई भी फाउंडेशन ले तो ऑफ कोर्स वो ब्लैक की कलर हो जाएगा। तो धीरे धीरे ग्रेइश टर्न होती जाती है अपनी स्किन, और हम लोग को लगता है हमारा मेकअप काला पड़ रहा है। तो मेकअप काला पड़ने का यही रीजन होता है कि आपको अपना अंडरटोन का जो प्रोडक्ट है वो दिखाया नहीं गया है, या आप कोई रॉन्ग प्रोडक्ट चूज कर दिया। फाउंडेशन को पूरे फेस पे लगा के भी नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे लगाते जाना है, धीरे धीरे ब्लेंड करते जाना है, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है वो फिर वो स्टक हो जाते हैं। उसको ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे जैसे आप जो एरिया में आप कर रहे हो उधर थोड़ा लगाओ, उधर थोड़ा ब्लेंडिंग करो, वापस दूसरे एरिया में लगाओ, वापस ब्लेंडिंग करो, वैसे ही आपको करना है। आपकी वैनिटी या आपका जो भी पर्सनल मेकअप वैनिटी बैग में उसमें 5 to 6 ब्रशेस होना बहुत जरूरी है। फिर आपके मेकअप में ब्यूटी ब्लेंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार ब्रशेस नहीं हुए तो फाउंडेशन के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नहीं, पर अगर ब्रशेस रख रहे हो तो हर चीज के अलग अलग रखो। ऐसा नहीं कि आई शेडो का ब्रश ब्लश ऑन भी यूज कर दिया, वो नहीं हो सकता है, बिकॉज आई शेडो के कलर्स और पिगमेंट्स बहुत हाई होते हैं ब्लश ऑन से। ब्लश ऑन हम लोग को लाइट करना होता है, आई शेडो हम लोग थोड़ा डार्क भी करें तो अच्छा लगता है। तो आपको ब्रशेस तो अलग ही रखने पड़ते हैं हर चीज। जैसे ये ब्लेंड कर रही है, उसका बचा हुआ प्रोडक्ट जो था उसके ब्यूटी ब्लेंडर में उसने ब्लेंड किया है, तो अभी वैसे ही आपको भी नेक एरिया में ब्लेंड करना कंपल्सरी है। अगर वो नहीं कर रहे आप तो किसी को भी दूर से भी पता चल जाएगा कि आपने सिर्फ फेस पे मेकअप किया है, यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। और किसी भी मेकअप को स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं।
आपको पहले आपका मेकअप बहुत लाउड लगेगा कि अरे बाप रे बहुत लाउड लग रहा है, बहुत लाउड. नो, it takes 15 to 20 minutes to penetrate in your skin because you are not used to makeup. हम लोग एवरीडे लाइफ मेकअप नहीं यूज करते. फाउंडेशन के बाद हम ले रहे हैं लूज पाउडर है लॉरा मर्सियर का, और फाउंडेशन को लॉक करने के लिए उसको हम फाउंडेशन से लॉक करेंगे, लूज पाउडर से लॉक करेंगे इस तरीके से. ऑलवेज हैव टू डू दिस स्टेप बिकॉज अगर ये स्टेप नहीं किया है तो आपका बेस इस जगह पे रहेगा ही नहीं. आप जब तक बाहर जाओगे, आप किसी से टिश्यू से या किसी से भी अपना स्किन वाइप करोगे, पूरा प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा. ये किया है तो पाउडर अपनी स्किन को लॉक कर देता है. आप अभी कुछ गिरा है, कुछ अपने से ऑयल या कुछ गिरता है तो अपन उसमें पाउडर डाल देते हैं बिकॉज वो लॉक कर देता है पाउडर ऑयल को. और उसको तो वैसे ही हमारे फाउंडेशंस में, हमारे कंसीलर में ऑयल बेस रहता है. वो ऑयल बेस हमारे स्किन टोन पे हम लोग जब पाउडर लगाते हैं वो ऑयल बेस को कंट्रोल कर देता है और लॉक कर देता है, जिससे हमारा बेस जगह से हिलता नहीं. बेक करने के बाद वो फ्लफी ब्रश से पूरा मर्ज कर लिया कि एक पूरा इवन लुक आ जाए. इतना करने के बाद अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि नहीं मेरी आई शेडो अभी भी लाइट लग रही है, तो आप एनी टाइम ये जो आईलिड्स है वहां पे एक टोन ज्यादा दे सकते हैं. लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं ये ठीक है, then you can always carry on with the same eyelid. हम लोगों ने जब आई मेकअप किया तब हम लोगों ने अंडर आई मेकअप नहीं किया था बिकॉज हमारा बेस काफी था. बेस करने के बाद ही हम लोग अंडर आई, जैसे हमारा वाटर लाइन एरिया है उस पर हम लोग काजल या जो भी कलर डिपॉजिट करना है आप बेस होने के बाद ही वो कर सकते हो. बेस के पहले वो नहीं कर सकते क्योंकि बेस के साथ वो कलर भी मर्ज होता जाएगा जब आप मर्जिंग कर रहे हैं. I'm starting off with the bronzing now. Kindly pout. Whenever you bronze, you have to pout your lips. तो हमको वो लाइन दिखेगी pout. तो ये जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ईयर के इस पार्ट से. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से स्टार्ट होके हमारा आईब्रो के पैरेलल, एज ऑफ द आईब्रो के पैरेलल को एंड होती है. दैट इज दिस एंड दिस. इसको मैं ज्यादा एंगल बनता है. इसको मैं ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती क्योंकि मुझे इतना ज्यादा लुक नहीं देना है, क्योंकि आज हम नेचुरल लुक दे रहे हैं. इसके बाद मैंने चिन एरिया जॉ लाइन कटिंग में उसको और जॉ cut कर लाइन दिया. कटिंग, जिसको डबल चिन है, जिसको हेवी चिक्स है, ये सब कटिंग उसको हम लोग देते हैं कि वो एक उसको थिन लुक देता है उसके फेस. नोज कटिंग भी होता है. हम लोग जिसका नोज बड़ा है, जिसका नोज ब्रॉड है, नीचे से ऊपर से पतला है, उसके लिए भी हम लोग नोज कटिंग दे सकते हैं. तो मैं नोज कटिंग भी कर रही हूँ क्योंकि इसका थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है. पैरेलल टू योर आईब्रोज, ये जो हमारा आईब्रोज है इसके पैरेलल हमारा लाइन जाना चाहिए नोज का. एग्जैक्टली ये ऐसे लाइन जाता है स्ट्रेट. मुझे जिस एरिया में ज्यादा दिख रहा है कि ये पार्ट ज्यादा है उसको स्टिक करना, उस सारे एरिया को मैं कट कर रही हूँ. उसके हेड मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए. वो हेड मूवमेंट्स कैसे कर रही है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दैट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टेप इन ब्लेंडिंग, गिविंग, कटिंग एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन हैंड्स. वापस उसको वो सेट कर रही है. जो कलर उसने पाउडर कटिंग दिया है, जो कलर उसने लगाया है, उसको सेट करने के लिए ब्यूटी टैलेंट से शी इज dabbing the color inside the skin. Now we are moving on with the blush on.
blushing, we have to smile. In short, smile. So this is the apple of the cheek, I should say. फेस पे ये वाला जो गोल है वो एकदम डिफरेंट है, तो वहां से हम लोग यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो ज्यादा एनहेंस होके आए। और जब भी ब्लश ऑन ले रहे हो ब्रश पे, थोड़ा पहले हाथ पे उसको डैप कर दो ब्रश और फिर स्टार्ट करो, ताकि अगर प्रोडक्ट ज्यादा आ गए वो सीधा यहाँ पे डिपॉजिट ना हो जाए। एंड कीप योर हैंड मूविंग फास्ट ब्लश ऑन के लिए, तो क्या एक जगह पे कभी डिपॉजिट नहीं होएगा प्रोडक्ट, वो मूव होता है। ब्लश ऑन इज डन। अगर आपको इसमें ज्यादा करना है तो आप ऑफकोर्स ज्यादा ब्लश ऑन कर सकते हैं, अगर इसमें आपको कम करना है तो आप कम ले सकते हैं, इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। ब्लश ऑन के बाद ब्लश ऑन मैंने किया है इस पैलेट से, फॉरएवर 52 पैलेट, ब्लश ऑन पैलेट, और अभी मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ स्पेशल अमरेजिंग पैलेट। ऑलवेज हाइलाइटिंग करने के लिए आपको ब्रश, पेन ब्रश लो या फिर ब्रश को फिंगर से दबा दो जैसे उसने दबाया है, और एग्जैक्टली ब्लश ऑन के ऊपर। अगर आपको सिर्फ जैसे ऑफिस जाना है या कहीं पे तो ये मैंने आईज थोड़ी शिमर की है, इसलिए मैंने थोड़ा हाइलाइटिंग भी शिमर की है, तो वो थोड़ा मैच हो जाता है, या तो फिर वो थोड़ा मैट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे शिमर हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। करने के बाद मैं काजल करूंगी। फॉरएवर 52 की ये काजल पेंसिल है। काजल आप वाटर लाइन पे भी कर सकते हो और नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हो, जैसा जिसको पसंद है। वाटर लाइन पे करने के लिए ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आईज के अंदर ना चला जाए। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा एकदम सिंपल लुक लग रहा है, मुझे पार्टी में जाना है और मुझे थोड़ा हैवी लुक चाहिए, तो आप ऑलवेज ये जो कलर था इसे लैश लाइन में अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा डिपॉजिट करके उसको मर्ज कर सकते हो। एंड ऑफ द कॉर्नर, मतलब एज ऑफ द आई जो हमारा रहता है, वहां पे हम लोग कलर को डिपॉजिट करेंगे और उसको अंदर की साइड मर्ज करेंगे, तो वो थोड़ा अंडर आई जो हम लोग आते हैं आईज फिनिश्ड लगती है इससे। फाइनल टच मैं दे रही हूँ लिपस्टिक से, फॉरएवर इन मैट न्यूड लुक है फ्रॉम फॉरएवर 52 मैट लिप क्रेयॉन, और ये शुगर की लिपस्टिक है। ये दोनों को मैं मर्ज करके कलर बनाऊंगी एंड देन आई अप्लाई फॉर व्हाट आई वांट द लुक। इवन अगर आपने मैट लुक किया और कभी आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं कोई पार्टी में जा रही हूँ, मेकअप न्यूड है, तो आप ऑलवेज एक लाउड कलर भी ले सकते हैं, क्योंकि आईज ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो अगर आपको रेड लिपस्टिक कैरी करनी है तो दैट यू कैन ऑलवेज कैरी। लिपस्टिक इज ऑल अबाउट योर पर्सनल चॉइस एंड इवन मेकअप ऑफ कोर्स, लेकिन लिपस्टिक तो पर्सनल चॉइस से ही आप कर सकते हैं। मतलब मैं आपको इतना भी नहीं सजेस्ट कर सकती कि नहीं आप मेरी लिपस्टिक लीजिए, आप अपने हिसाब से कोई भी लिप कलर ले सकते हैं। अगेन लिप शेप जो है वो लिपस्टिक करते समय चेंज नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेकअप में। अगर आपका लिप शेप भी चेंज हो जाता है तो वो अच्छा, मतलब
See, you can understand, you can make it out कि नहीं मेरा लिपस्टिक गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, because वो आपका जो पूरा जो लुक होता है वही चला जाता है, तो लिपस्टिक पूरा बिगड़ जाता है। तो उसके लिए पहले आपको आउटर लाइंस को क्रिएट करना पड़ता है। लिप्स की जो आउटर लाइंस होती है उस पे जैसे ये कर रही है वैसे आपको करना पड़ता है। किसी किसी के लिप्स का पिगमेंटेड होता है, मतलब अपर लिप्स जो है वो ज्यादा डार्क रहता है और लोअर लिप जो रहता है वो नॉर्मल टोन का रहता है। तो उसके लिए आप ऑलवेज लिप को भी कंसील कीजिए और फिर लिपस्टिक कीजिए, तो आपका सेम अगर लिप कलर अलग है तो आपका लिपस्टिक का कलर भी अलग हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले लिप कलर को सेम करना कंपल्सरी है। अगर लिप कलर को सेम नहीं किया तो लिपस्टिक का पूरा कलर अलग दिखेगा। लोअर लिप अलग कलर का दिखेगा और अपर लिप अलग कलर का। ये बहुत ज्यादा न्यूड कलर है। अगर आपको इसमें फिर ज्यादा चाहिए कि नहीं बहुत ज्यादा न्यूड लग रहा है तो ये सॉरी एडिंग सम ऑफ द ब्राउनिश टोन टू दिस। ये मैट लुक हो जाता है लिप्स का। अगर आपको ग्लॉसी लिप्स पसंद है तो एनी टाइम आप ग्लॉस यूज कर सकते हैं। ये शॉपारेल का ग्लॉस है, तो मुझे अभी इस लुक में फिलहाल ग्लॉसी लिप्स नहीं करना है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कोई भी कलर पे ग्लॉस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज मस्कारा। अगर इस मस्कारा अगर लैशेस फेक लैशेस लगाने को यूज टू है तो आप लगा सकते हैं, बट नहीं तो आपको वॉल्यूमाइज मस्कारा एकदम ही जो आपको वॉल्यूम दे देगा लैशेस को वो करना है। और उसके लिए आपको द वे शी इज डूइंग यू हैव टू जस्ट चेक। सिर्फ मस्कारा और आईब्रो डिफाइनिंग भी आपके फेस को पूरा अलग लुक दे देता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप, जैसे हमने पहले भी कहा कि इतना सब आई शेडोज नहीं करना है, आप सिंपल कंसीलिंग करें, एक सिंपल ब्राउन कलर करके मस्कारा कीजिए और आपकी आईब्रो डिफाइनिंग कीजिए, आपका आई मेकअप हो जाता है और वो बहुत ही एलिगेंट दिखता है। अपर लैश और लोअर लैश दोनों पे उसने मस्कारा किया है। आईज पूरी एनहेंस हो जाती हो गई है इससे। Now the next step is brow highlighter. ब्रो बोन हाइलाइटर जो हम लोग आईब्रोज के नीचे से हम लोग देते हैं, दैट इज फ्रॉम 3/4 ऑफ द आईब्रोज टू द एजेस। इतना ही देना है। आप देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है। अगर आपने सिर्फ मतलब ये नहीं किया है कि इसका जो इफेक्ट है वो नहीं दिखता है। ये एक आईब्रो को 3D लुक दे देता है। ये आईब्रो और ये आईब्रो में आपको डिफरेंस दिखता होगा, यू कैन जस्ट सी क्या डिफरेंस दिखता है।
अगर आप मैट लुक कर रहे हो तो भी ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, तो ही मतलब वो अच्छा दिखेगा। आपकी आईब्रो इससे ज्यादा डिफाइन होती है। अगर आप आईब्रो डिफाइनिंग नहीं, आपको ऑलरेडी बहुत गाढ़ी है आईब्रो, आपको आईब्रो डिफाइनिंग नहीं करना है, तो ये स्टेप तो कंपल्सरी करना है, ब्रो बोन हाईलाइटिंग। Last but not the least, this is the main part. This is highlighter from makeup fixer. ये हाईलाइट भी करता है, इसका मॉडल अभी लुक, और इससे बहुत कंप्लीट फिनिश लुक आ जाता है। बहुत अच्छी तरीके से मेकअप को सेट करता है। और इसको 1.5 फुट दूर से पंप करना है, एक साथ नहीं करना है, एक पंप करके छोड़ो, एक पंप करके छोड़ो, वैसे करना है। Don't have to pump it together. So our model is ready. Our makeup is already done, and I hope you all like it. Yeah, so this is the natural subtle look. We have created a little bit of shimmer also today. और हम सोच रहे हैं कि अगर कोई आगे सेशन होता है तो हम मैट लुक में स्मोकी लुक भी दिखाएंगे। And we are going up for hair session now. So we are finished with the makeup. Thank you. Now for hair, जैसे स्किन के लिए प्रेपिंग जरूरी है, वैसे हेयर के लिए भी प्रेपिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अपने हेयर की केयर करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हेयर बहुत ही अहम पार्ट होता है हमारा लुक का। इफ हेयर अच्छी नहीं दिख रहे हैं तो पूरा लुक हमारा चला जाता है। हम भले कितना भी मेकअप कर ले, कितने भी अच्छे लगते हो, बट अगर हेयर ही हमारे प्रॉपर नहीं है तो हम वो मैसी ही दिखेगा। कितना भी हम लोग कर ले वो मैसी ही दिखेगा। तो हेयर को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि बस अगर हमको स्ट्रेटनिंग करना है तो स्ट्रेटनिंग फटाफट स्ट्रेटनर यूज कर दिया और हो गया। इसको उसकी भी एक प्रोसीजर है जिससे हम अपने बाल को डैमेज होने से बचा सकते हैं। कि चलो हम लोग मॉडल्स है, हमें ज्यादा यूज होता है, सब मशीन ज्यादा यूज होती है, तो हमको जैसे हीट प्रोटेक्टर यूज करना बहुत जरूरी होता है, जैसे सेरम यूज करना बहुत जरूरी होता है, और आफ्टर केयर भी करना बहुत जरूरी होता है हेयर के। So she'll show you how to, she'll show you 2 looks about the hair कि कैसे हम पार्टीज पे अगर हमको जल्दी है तो हम क्या कर सकते हैं। ऑलवेज हेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सीरम अप्लाई करना पड़ता है। सीरम और पानी को मिक्स करना पड़ता है, दैट इज 2:1 के रेशियो। इफ 2 ड्रॉप ऑफ वाटर 1 ड्रॉप ऑफ सीरम, ऐसे हम लोग को लेना है। सीरम से क्या है, हमारे जो किसी के हेयर बहुत ही ड्राई होते हैं, बहुत ही फ्रीजी होते हैं, बहुत ही बेबी हेयर होते हैं, वो सब बैठ जाएंगे। हम लोग को वो प्रोपोर्शन को लेके हैंड में रब करके मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ऑलवेज ही हमारे अपर हेयर को मॉइस्चर मिलता है, बिकॉज वो हमारे रूट से कनेक्टेड होते हैं। बट जो हमारे लोअर हेयर होते हैं, जैसे मेरे लंबे बाल है, जो नीचे के बाल है उस पे हम नहीं मॉइस्चर मिल सकता उतना, तो उस मॉइस्चर को क्रिएट करने के लिए हमको सीरम और वाटर 2:1 के प्रोपोर्शन में लेना है, रब करने हैं हैंड्स, और वो यहाँ पे अप्लाई करना है ऐसे। वंस अप्लाइड, आपके पूरा प्रोडक्ट अप्लाई हो गया है, थोड़ा बहुत भी हाथों में बचा है वो आप ऊपर के बालों में लगा सकते हो टू मेक योर बेबी हेयर सिट, नॉट टू मच, वरना वो ऑयली लुक नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को सिर्फ हेयर केयर और हेयर शाइन के लिए हम लोग को सीरम और वाटर मिक्स करके लगाना है, वो नेचुरल शाइन देता है बालों। वंस यू आर डन विद दिस, वेट फॉर 5 to 10 minutes। सीरम को हमारे बालों में पेनिट्रेट होने दो, सीरम को बालों के साथ पूरा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाने दो, कोम कर लो बालों को अच्छे से, एंड हीट प्रोटेक्टर लगाइए। नाउ सो हीट प्रोटेक्टर आपको दूर से लगाना है, आपको कोई भी कंपनी का मिल जाएगा, जैसे लॉरियल है, ब्लड है, और हीट प्रोटेक्टर लगाने के बाद भी जैसे हमारे पास ये हीट प्रोटेक्टर है, मेरे पास ये हीट प्रोटेक्टर है। हीट प्रोटेक्टर भी आपको एक साथ पंप नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पंप इट। इतना डिस्टेंस होना, कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट स्प्रे कर रहे हो बालों में, फेस पे, कहीं पे भी इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए। यू कैन नॉट डू फ्रॉम हियर,
फिर तो बाल वो जितना दूर से करोगे वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होएगा, जितना पास से करोगे वो कम एरिया में स्प्रेड होगा। हमको कम प्रोडक्ट में ज्यादा एरिया कवर करना, तो यू हैव टू डू 1 2 3। अभी ये 3 कप में मेरे इतने पूरे बाल हो गए। हीट प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टर इज नेसेसरी बिकॉज जैसे हम लोग रोज बालों में अगर मशीनरी यूज कर रहे हैं, हम लोग आयरनिंग मशीन, टॉन्ग मशीन, कर्लिंग मशीन जो भी यूज करें, ड्रायर तो ड्राई कर रहे हैं बालों को, वो बालों को ड्राई कर देता है बिकॉज उसमें एक्सेसिव हीट होती है। वो हीट को बालों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचने के लिए हम लोग ये हीट प्रोटेक्टर यूज करते हैं। एंड हीट प्रोटेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन दिस, क्योंकि वो बालों को डैमेज नहीं करता है, बालों को ड्राई नहीं होने देता है, और जो बालों का इनर शाइन है वो बना के रखता है। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी है और आपको ऐसे लगता है कि कितना भी मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करूँ कि वो फ्रीजी हो जाता है, वापस ऐसा ही लुक हो जाता है, तो आप एनी टाइम ये हीट प्रोटेक्टर के बाद थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं, जो हार्ड स्प्रे होता है। हार्ड स्प्रे लॉन्ग स्प्रे से दूर से स्प्रे करके फिर उसको भी सेटल होने दीजिए, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनिंग या फिर आप मूस लगा दीजिए, मूस को लीजिए, हाथ में 2 हाथों में रख लीजिए, जैसे मैंने पहले सीरम का बताया वैसे ही लगाना है, नीचे लगाना है। फिर अगर एक्सेस प्रोडक्ट बचता है, अगर नहीं भी बचता है तो हाथों में तो रहता ही है, उसको फिर ऊपर के बालों में मर्ज मतलब सिर्फ ऐसे घुमा दीजिए हाथ। मूस लगाने की मूस लगाओगे तो आपका आयरनिंग टिकेगा लॉन्ग टाइम के लिए, और वो बालों को खराब भी नहीं करेगा, फ्रीजी हेयर को स्ट्रेट भी करेगा। सेम एज विद द स्ट्रेटनिंग है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग है, आप हमेशा यही होता है कि हमारे बाल में कभी कर्ल्स दिखते ही नहीं, सो वी कैन डू इन द सेम प्रोसीजर कि हमने ये सारी प्रोसीजर की और उसके बाद उसको टॉन्स किया, तो वो ज्यादा देर तक स्ट्रेट मतलब कर्ल्स रहे। लेकिन देन क्योंकि फिजिटिंग योर हेयर, अगर आप अपने बाल को ऐसे फिजिटिंग कर रहे हो तो कुछ भी स्टे नहीं करने वाला है। इसके लिए आपको because see your fingers already have a heat in your fingertips already have a heat in them. If you constantly keep on moving your fingers in your hair, तो वो जो भी हेयर स्टाइल, कुछ भी आयरनिंग किया है, कर्लिंग किया है, कुछ भी किया है, that is going to go off, that is not going to stay for a longer time. So you don't have to touch with your fingertips because उसमें already heat रहता है. Even the makeup, in makeup it is same, if you touch your hand over here, if you take the mobile and means just इतना close करके बात कर रहे हो, आप touch करोगे तो वो निकल जाएगा, वो waterproof रहेगा, आप पानी डालोगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन आप touch करो स्किन अगर आप स्वेटिंग मतलब गर्मी में बाहर जा रहे हो और बोला कि मैं टिश्यू से वाइप करूं, वाइप नहीं करना है, आपको डैब करना है। टैबिंग करते हो तो मेकअप नहीं निकलता है, बट आप वाइप करते हो तो कोई भी चीज निकल जाती है वाइप करने से। और अभी सुनीता आपको सेल्फ कर्ल्स बता रही है, जो आप अब वो एक आपका लुक होगा, आप सेल्फ कर्ल्स कैसे कर सकते हैं, इसके साथ ही आप स्ट्रेटनिंग भी हो जाएगा, मेरी कर्ल्स टॉन्स मशीन से। See, I'm dividing my hair into 2 parts, the middle parting. मिडल पार्टिंग से मैंने डिवाइड किया है, मैंने एक साइड को फ्लिप कर दिया है, ये साइड को पूरा फ्लिप कर दिया है क्लिप से, एंड आई एम स्टार्टिंग विद दिस साइड। मैंने ये साइड पे हीट प्रोटेक्टर ऑलरेडी पहले डाल दिया है आपके सामने, अभी जो मैंने पंप किए थे उसमें। आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉलर सेक्शंस, वो लास्ट सेक्शन पहले लेंगे, अगर आप फर्स्ट सेक्शन पहले लोगे तो लास्ट सेक्शन का फर्स्ट सेक्शन सारा निकल जाएगा, तो पहले वो नीचे से लेंगे। मैंने ये लास्ट सेक्शन लिया है। अप्रोक्सीमेटली हीट आपको फुल पे नहीं रखना है, इट्स ओके इफ यू कीप इट टू 180 और 200, इससे ज्यादा हीट बालों को मत दो, वो बाल बिगड़ जाते। ऐसे आप स्ट्रेटिंग कर सकते हैं, जैसे उन्होंने ऐसे किया फिर जो कर्ल्स कर दिए तो वो ऑलरेडी स्ट्रेट हो गए इसने बाल। ये आपको 10 to 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हम लोग इसको निकालेंगे, बट 10 to 15 सेकंड्स होल्ड करेंगे तो भी बालों को उतना हीट मिलेगा, अदरवाइज इतना हीट नहीं मिलता है बालों को। हीट कर्ल्स करने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको
फिलिप्स का छोटा कर्लर मशीन भी मिल जाएगा अगर आप डेली यूज के लिए करते हैं। आयरनिंग मशीन से भी हम लोग कर्लिंग कर सकते हैं, बट आयरनिंग मशीन का हीट बहुत ही स्लो रखना, अदरवाइज बाल भी उसके साथ निकल जाएंगे कर्लिंग के साथ। ऑलवेज डायरेक्शन याद रखना, आपको आउटवर्ड्स लेना है, इनवर्ड्स नहीं लेना है। मैं ये आउटवर्ड्स ले रही हूँ, इनवर्ड्स नहीं ले रही हूँ। मैं ये ऐसे घुमा रही हूँ पीछे की साइड, तो वो मेरा आउटवर्ड्स हो जाता है। इनवर्ड्स लोगे तो बहुत गंदा दिखता है, वो आपका फेस और बड़ा दिखेगा इनवर्ड्स में। आप मतलब सामने डिफरेंट साइड मत कर देना कि एक आपने आउटवर्ड ले लिया, एक इनवर्ड ले लिया, तो आपको एक दो बार उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप ये कर सकते हो। या तो फिर स्ट्रेटनिंग मशीन से काट सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है, तो हम लोग ज्यादा सजेस्ट नहीं करते। देता है बालों में। ये कैसे हर ये राउंड है, ये राउंड में हर जगह पे घूमता है, और वो स्ट्रेट होता है, तो वो स्ट्रेट बालों को पूरा कांस्टेंट हीट देता रहता है। आप ये कर्ल्स देख सकते हो। अगर आपको ऐसे प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, आप अपनी फिंगर्स उसमें डाल के उसको खोल सकते हो, और ये खोलने के बाद देखो कितने सुंदर है। अभी मैं ये साइड पे आपको आयरनिंग करके बता रही हूँ। मैंने आयरनिंग किया, अभी मैं आयरनिंग वाले कर्ल्स आपको दिखाऊंगी। आयरनिंग कर्ल्स के लिए आपको सेक्शन थोड़े पतले लेने पड़ते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी काम करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेट हेयर है, तो आप पहले ही ज्यादा स्प्रे कर दो उसे, तो वो फास्ट एकदम ही कैचअप कर लेगा और ज्यादा कर्ल हो जाता है। आयरनिंग कर्ल्स ये आप ironing देख कर्ल। सकते हो। Just like this. See the difference between the normal curls and the ironing curls. So now we are just ending up with the session of makeup and hair. And before that, we would like to tell you that skin preparation before and after बहुत जरूरी होती है कि आपको मेकअप से पहले भी इतना ही प्रिपेयर करना है, और मेकअप के बाद भी उसको उतना ही आपको केयर करनी है उसकी। सेम इज विद द हेयर, उसको पहले भी उतना ही प्रिपेयर करना
किसी भी फंक्शन के बाद उसको बाद में भी उतना ही प्रिपेयर करना पड़ता है, उतना केयर करना पड़ता है हेयर का। अगर हेयर का केयर हम लोग रोज हार्ड स्प्रे यूज कर रहे हैं, रोज नोज यूज कर रहे हैं, रोज सीरम यूज कर रहे हैं, उससे भी बाल डैमेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट यू हैव टू टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो भी कुछ भी चीज है वो प्रोपोर्शन में ही अच्छी लगती है, नहीं ज्यादा नहीं कम। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। So we are ending up with this session. You can always ask the questions now. Thank you so much. Thank you so much, Shraddha and Sunita. Thank you so much. And now, ladies, I hope you all liked it. so ladies, now they are open to questions. You guys can go ahead and ask if you have any. आप अपने आप को unmute कर सकते हो. Ma'am. Hello. Hello. Ma'am, am I audible? Yeah. मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे जब हम कर्ल्स या फिर स्ट्रेटनिंग कुछ भी करते हैं और फिर जब हमें आफ्टर जो केयर करनी है हेयर्स की, उसके लिए आप हमें कुछ टिप्स दे दो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जब हम हीट दे देते हैं, फिर जब हम कर्ल्स करते हैं रेगुलर या फिर कोई फंक्शन वगैरह में, तो ऑलमोस्ट कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हेयर ब्रेकेज होते हैं या फिर स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो आप उसके लिए कुछ टिप्स बता दो। बेसिकली पहले तो आपको हीट प्रोटेक्टर तो यूज करना ही है। आप कुछ भी प्रोडक्ट मतलब कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हो बालों को, आपको हीट प्रोटेक्टर तो यूज करना ही है। अभी आप किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं और आपने हार्ड स्प्रे किया है बालों में, तो डेफिनेटली हेयर वॉश करना ही है। हार्ड स्प्रे के बाद हेयर वॉश आप नहीं करोगे तो हार्ड स्प्रे 2 दिनों में, एक दिन में आपके बालों में स्टिकी हो जाएगा, और वो स्टिकी होता है और वो बालों को फ्रीजी कर देता है। जब आप बाल कोम करोगे तो ज्यादा बाल टूटेंगे आप, बिकॉज वो स्टिक हो गए। तो आपको हेयर वॉश आफ्टर, अगर स्प्रे किया है हार्ड स्प्रे आपने, तो हेयर वॉश करना है या फिर रिंस ऑफ कर दो बाल को सिर्फ पानी से रिंस ऑफ करने के बाद सूख जाता है, डू प्रॉपर ऑयलिंग, प्रॉपर मसाज एंड देन वॉश इट अगेन। तो वो कैसा आपके बालों को जो मॉइस्चर चाहिए वो मिल जाएगा। जो मॉइस्चर आपके बालों में हीट के कारण चला गया है, हीट से मॉइस्चर चला जाता है, तो जो हीट के कारण मॉइस्चर चला गया है बालों से, वो वापस आपके बालों को मिल जाएगा। और आप होम केयर भी कर सकते हो, जैसे आपने कोकोनट मिल्क ले लिया है या तो फिर कर्ड ले लिया है, वो सब चीज आप ऑलवेज यूज कर सकते हो। लेकिन वो बहुत जरूरी है, अगर आप वो नहीं करते हो और रेगुलरली अगर आप उस पर हीट दे रहे हो, आज नहीं तो कल वो डैमेज ज्यादा हो जाए। तो ऑलवेज सजेस्ट कि बिफोर आफ्टर आप हेयर की और स्किन की केयर। मैम वन मोर क्वेश्चन। Yes. मैम जैसे जब हम ऑयल अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स पे, तो उसका मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए? लाइक जैसे कभी कभी मुझे One सब night. कुछ लोगों ने सॉरी रात वन को नाइट। अप्लाई किया, सुबह धो दो। यू डोंट हैव टू कीप इट मोर देन 12 आवर्स। बट देन यू हैव टू, उसको पेनिट्रेट होना बहुत जरूरी है। आपने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, उसको एक प्रॉपर्ली उसको अप्लाई कीजिए, उसको अंदर तक रूट्स तक जाने दीजिए। जैसे ऑयल गरम करके आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली मसाज कीजिए। वो रूट्स के अंदर उतरना चाहिए। अगर ऊपर से ही लगा दिया तो दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। अगर वो रूट्स के अंदर उतरेगा तो ही वो मॉइस्चर खींचेगा अंदर, और तो ही वो बालों को बाद में मॉइस्चर देगा वॉश के बाद। तो अपने बाल वॉश के बाद भी किसी किसी के बाल बहुत शाइन मारते हैं, आपने देखा होगा। किसी के बहुत ड्राई लगता है, किसी के बहुत शाइन मारते हैं। तो शाइन मारने का रीजन ही ये होता है बेसिकली। यू कैन अंडरस्टैंड जो कोकोनट ज्यादा खाते हैं, जैसे साउथ में लोग कोकोनट ज्यादा खाते हैं, तो उन लोग के बाल कैसे शाइन मारते हैं, बिकॉज कोकोनट हैज एन इनबिल्ट ऑयल। उसके अंदर खुद का ऑयल रहता है, तो उनको उतना मॉइस्चर मिल जाता है। बट हम लोग इतना नहीं खा पाते, हम लोग जंक फूड या ऐसा कुछ भी खाते रहते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है कि हम लोग हमारे बाल की प्रॉपर स्किन, हेयर, सब कुछ की केयर जो भी है वो प्रोपोर्शन में ही अच्छा लगता है। सेड दैट बिफोर आल्सो। मैम एक और क्वेश्चन। जैसे जिसके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, लाइक सब लोग बोलते हैं कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो उनको ज्यादा होता है, लेकिन जब हमारी नींद पूरी भी हो जा रही है और फिर भी हमारे डार्क सर्कल्स नहीं खत्म होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? डार्क सर्कल्स के लिए तो जैसे होता है ना, वो हेरिडिटी भी होती है, टेंशन भी होती है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि नींद पूरी नहीं हुई तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, उसके कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स होते ही है।
मतलब किसी ना किसी चीज के लिए तो वो होता ही है। बट अगर आपको डार्क सर्कल्स कम करने हैं तो यू कैन एनी विच वेज पुट अ कुकुम्बर ऑन योर आईज एंड गो टू स्लीप, रोज वाटर लगा के सो जाओ। या फिर अपना पोटैटो का जो पील रहता है, पोटैटो के पील में स्टार्च होता है, वो कभी कभी कैसा है ना, यहाँ पे रिंकल्स आ जाता है ना तो भी वो डार्क दिखने लगता है, तो आप पोटैटो की पील को भी वहां पे लगा सकते हो। दिस ऑल आर नेचुरल रेमेडीज, आप ये नेचुरली कर सकते हो। या फिर बाहर तो सब प्रोडक्ट्स मिलते ही है, अंडर आई क्रीम मिलते हैं, अंडर डार्क सर्कल क्रीम मिलते हैं, वो लोग आप वो सब तो आप लगा ही सकते और आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप प्रॉपर स्किन केयर कर सकते हो। ये तो हमने सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर नेचुरल रेमेडीज बताई। ओके मैम, थैंक यू। Good evening. हेलो मैम। हाय। हाय मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कि बहुत ज्यादा डार्क ड्राई स्किन हो, अगर हम मॉइस्चराइजर ना यूज करके फेशियल ऑयल यूज करें? चल सकता है, बट फेशियल ऑयल ओनली इन विंटर्स, यू कैन नॉट यूज फेशियल ऑयल इन समर। समर में वो स्किन को और स्टिकी कर देता है। ये जो Okay. फेशियल ऑयल है डिनर्जियो का, आप देख सकते जी जी। हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप नाइट में भी इसे लगा सकते हैं, प्रिपेयरिंग का काम करता है। और Okay. ये विंटर्स में यूज करते हो, मतलब गर्मी में भी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर इसको लीजिए, लेकिन कम प्रपोर्शन में लीजिए। आपको प्रपोर्शन पता होना चाहिए, फिर ऐसे नहीं हो कि गर्मी में आपकी स्किन ड्राई है, आपने ज्यादा ले लिया और वो ऑयली बेस अगर फिर आप मेकअप करते हो ना तो वो पूरा ऑयली दिखेगा, वो Okay. सटल नहीं दिखेगा, वो दूर से एकदम ऑयली ऑयली मेकअप कैसा दिखता है वैसा दिखता है। तो प्रपोर्शन में लेना है आपको, और हो सके उतना समर्स में ऑयल को अवॉइड करते हैं हम लोग, विंटर्स में ही ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम। Manasmita, do you want to ask a question? आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। Jasmine, if you have a question, you can go ahead. हेलो मैम। हेलो। पहले तो मैम आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, दूर से लग ही नहीं रहा था कि मेकअप है। न्यूड मेकअप मैंने पहली बार इतना दिखा। मेरा एक्चुअली मैम ये क्वेश्चन है कि वो ना, जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ ना कभी, तो वो मेरे ऊपर ही चमकता रहता है, मतलब मैं लगा ही नहीं सकती। ये नहीं है कि मेरे को भी शायद ना लगाना आता हो, लेकिन जब मैंने कभी पार्लर से भी करवाया है वो दूर से ही चमकता है। हाँ, तो उसका है कि आपको प्रेपिंग होती है स्किन की, जो प्रेपिंग हमने जैसे पहले बताया कि आपकी जो भी स्किन टाइप से कुछ ड्राई है तो उसको प्रॉपर्ली प्रेप करना पड़ता है। वो ड्राई स्किन के लिए भी अगर आप जो भी ऑयल लगा रहे हो पहले प्रेपिंग के लिए, उसको 3-4 मिनट देना पड़ता है आपको, पूरा उसको मसाज करके अंदर उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए, आपकी स्किन प्रिपेयर हो गई, फिर कंसीलर लगाइए और फिर फाउंडेशन लगाइए। और उसका भी आप स्पॉन्ज से लगाइए, डैम स्पॉन्ज। अगर आप सूखे स्पॉन्ज से लगाएंगे ना तो और सूख जाएगा, वो वापस आएगा स्पॉन्ज में, आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा। स्किन के अंदर जाने के लिए पहले आपको अपनी स्किन को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो कुछ चीज को एब्जॉर्ब कर सके। ओके। एब्जॉर्ब करेगी तो ही तो वो स्किन के अंदर उतरेगा, अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो ऊपर ही रहने वाला है। आपको दूर से ऐसा ही लगेगा कि ऊपर ऊपर रह रहा है, मेरा मेकअप अंदर नहीं गया है, ऐसे पैची लगता है मेकअप। और आप स्पॉन्ज का भी एक प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डैबिंग कर, अगर आप उसको ऐसे घिसोगे तो वो वैसा ही मतलब पैची हो जाएगा। अगर घिसोगे यहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ से वाइप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आप उसको डैब करोगे इस तरीके से तो फिर वो कभी भी ऐसे नहीं दिखेगा। आप एक बार ट्राई करना, अगर आपको प्रॉब्लम होता है आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। एंड मैम एक मैंने काजल के लिए भी पूछना था, जैसे आज मैंने वैसे लगाया है लेकिन मेरे को कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं है, मैंने डॉक्टर से भी पूछा, लेकिन जब भी मैं काजल लगाती हूँ मेरी आंखें 2 घंटे में पानी पानी सारा वो ऐसे ही निकल जाता है। बिकॉज आप लैश लाइन पे नहीं लगा, वाटर लाइन पे नहीं लगा रहे हो, आपका काजल अंदर जा रहा है लगाने के टाइम। ओके, तो यहाँ लैश वाटर लाइन जो होता है अपना अंदर की साइड नहीं, बाहर की साइड का जो वाटर लाइन होता है अपना, जैसे ये मेरा वाटर लाइन पे मैं बाहर से लगाऊंगी ना
आप एक बार ट्राई करना ये भी, तो वो पानी नहीं छोड़ेगा, आपका अंदर आता है इसलिए वो पानी छोड़ता है। बहुत ज्यादा आपने अंदर से लगाया, पर थोड़ा बाहर से लगा के देखिए। कोई भी कुछ भी चीज आंखों में डालेंगे तो पानी आता ही है आंखों में से। पर Right. आपका काजल अंदर जा रहा है इसीलिए पानी आ रहा है, काजल अंदर नहीं जाएगा तो पानी नहीं आए। ओके ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, मैं बाहर ही आप लगाऊंगी। ट्राई करिए एक बार, और अगर आप प्रोडक्ट आप कोई और यूज कर रहे हो तो एक बार किसी और प्रोडक्ट पे स्विच ऑन करके देख लीजिए कि कभी उस प्रोडक्ट की वजह से भी आपकी आंख में से पानी आओगे। आज मैंने यूज किया था फॉरएवर का काजल पेंसिल, वो बहुत ही अच्छा है। इसमें ज्यादा करके किसी मतलब आज तक मुझे कभी कंप्लेंट नहीं आई है कि हमारी आईज से वाटर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आपकी आईज ही वाटरी है तो एक अलग बात है। आप एक बार ट्राई करके देखिए ये वाला प्रोडक्ट फॉरएवर काजल पेंसिल। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. All right, I think that would be it for the questions. Thank you so much, Shraddha. Thank you so much, Kirita. It was Most a pleasure welcome. having you here, and thank you so much for all the information. And I shall take your leave for today and signing off. I'll just have some words with the participants. Thank you. Bye. Take care.